تشریف رکھیے. شفیع صاحب. تعین وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. جناب اسپیکر، فارم 47 کے ذریعے عوامی مینڈیٹ چوری کر کے، یہاں میں چور نہیں کہہ رہا، چوری کر کے کہہ رہا ہوں، جو ناجائز نوزیدہ حکومت بنائی گئی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا کہ وہ لوگ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، انہوں نے بوٹ کو عزت دینی شروع کر دی. اور آج جناب اسپیکر وہ لوگ بھی ہیں، وہ یہاں کے نمائندے بھی ہیں جو کہتے تھے شرم کرو حیا کرو. آج وہ ایک لیڈی کا مینڈیٹ چوری کر کے کس منہ سے قومی اسمبلی میں جائیں گے؟ جناب اسپیکر، آپ کو یاد ہوگا یہ بہت فیمس تھا ان کا کہ شرم کرو حیا کرو. آج ریحانہ ڈاہر کا مینڈیٹ چوری کر کے وہ کس منہ سے قومی اسمبلی میں بیٹھیں گے؟ کہاں ان کا شرم حیا گئی؟ جناب اسپیکر، میری گزارش یہ ہے، جناب اسپیکر آخری بات. Order in the house please, order in the house please, order in the house please. میاں صاحب you have the right to audience میں نے آپ کو دیے ہے، لیکن پوائنٹ آف آرڈر پہ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آپ کراس ٹاک نہ کریں سر. ایک سیکنڈ، میں معزز ممبر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک سیکنڈ دیں گے. میاں صاحب میں عرض کروں. جناب اسپیکر میری آخری بات سنیں نا. پلیز میں آنریبل ممبر سے ریکویسٹ کرتا ہوں ٹو بی سیٹڈ سر. آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں، آپ تشریف رکھیں سر. جناب اسپیکر بھائی صاحب تشریف رکھیں. جناب اپنا پلیز نو کراس ٹاکس، نو کراس ٹاکس پلیز. میں نے بٹھایا ہے، میں نے بٹھایا ہے. نو کراس ٹاکس پلیز، مینٹین دا آرڈر. اگر آپ بات کریں گے اور اس بات میں لفظ غیر پارلیمانی نہیں ہوگا، کوئی تضحیق نہیں ہوگی، آپ کا کوئی جینوئن گریوینس ہوگا، آپ کی ہر بات کہنے کا آپ کو حق ہوگا، لیکن پروسیجر کے مطابق. میں یہ allow me to complete sir, allow me to complete. As the rules are, once the speaker speaks, the member is bound to hear it out. آپ نے سننا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رول یہ میں نے، کیونکہ اس دن چیف منسٹر کے الیکشن کے موقع پہ آنریبل ممبر رانا آفتاب صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے، ڈنٹ الاؤ. اس کی وجہ سے مجھے بھی تھا فیلنگ کہ یہ ان کو موقع مل جاتا، لیکن رولز نہیں تھے، کانسٹیٹیوشن اجازت نہیں دیتا تھا. آج بھی جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ اٹھے ہیں. آئی ہیو این ایجنڈا، آئی ہیو ٹو، اس ایجنڈے کے ساتھ میں نے آگے چلنا ہے. آپ اپنی بات کو ختم کر دیں تاکہ یہ مزید کراس ٹاکس نہ ہوں. اور میں آپ کو ایجنڈے کے بعد دیٹ آئی اسٹینڈ، دیکھیں آئی ہیو ٹو مینٹین دس بیلنس. آپ کو میں پورا بات کرنے کا حق دوں گا، سخت سے سخت بات کرنے کا حق دوں گا. آپ کی ان انٹرپٹیڈ بات ہوگی، آرڈر میں مینٹین کروں گا. آئی ایشور یو دیٹ دا ممبرز آن دا اپوزیشن بینچز. لیکن آپ تھوڑا سا پروسیجر کے ساتھ مجھے اپنا تعاون فراہم کریں گے تاکہ کانسٹیٹیوشن رولز کے مطابق ہم معاملات کو چلا سکیں. اب پلیز آپ کمپلیٹ کر لیں. جناب اسپیکر بس آخری بات نہیں ہو سکتی. یہ آپ کا بڑا ویلڈ خاصا پوائنٹ ہے، آپ نے درست کہا. پوائنٹ آف آرڈر جو کتاب میں لکھا ہے وہ کیا ہے؟ پوائنٹ آف آرڈر یہ کہتا ہے کہ اگر کسی وقت اسمبلی میں رول سے ہٹ کر کوئی بات شروع ہو جائے تو کوئی معزز ممبر اٹھ کر اس چیز کی نشاندہی کر دیں کہ یہ رول سے ہٹ کے ہو رہا ہے، تو اس پر پوائنٹ آف آرڈر پہ رولز کی درستگی ہو سکتی ہے. پوائنٹ آف آرڈر صرف یہ ہے،
उस पर स्पीच नहीं हो सकती। आपने दुरुस्त कहा सर फॉर्म 47 इससे और क्या बड़ा जुल्म और ज्यादती हो सकती है सर, मैंने तो उसी पे बात की है। अच्छा जनाब स्पीकर, आखिर में मेरी बात यह है कि हमारे इलेक्टेड मेंबर जो हैं उनको तो हाउस में सप्तान साहब ने कहा था, इंश्योरेंस दी थी कि जी वो आएंगे, मियां असलम इकबाल आएंगे, ऐसे रशीद भट्टी साहब आएंगे, लेकिन आज तक वो नहीं आ रहे। तो हम इसको क्या क्या कहेंगे? ये आई नहीं हो रहा, पार्लियामेंट नहीं हो रहा, क्या चीज हो रही है? मियां साहब आप तशरीफ रखिए, मैं लेट मी एड्रेस दिस। ये आपका बड़ा जेन्युइन कंसर्न है टू ऑल ऑपोजिशन मेंबर्स जितने आप यहां तशरीफ फरमाए। खालसा प्लीज एक सेकंड मेंटेन ऑर्डर प्लीज, एक सेकंड सर, एक सेकंड यार मलिक वहीद प्लीज, एक मिनट। देखिए ये आपका बड़ा जेन्युइन कंसर्न है कि कोई नोटिफाइड मेंबर हाउस तक नहीं पहुंच पा रहे। आई एम ऑल्सो कंसर्न्ड एंड रेस्ट एश्योर्ड कि मैं आपके उन मेंबर के यहां तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी एफर्ट करूंगा। रेस्ट एश्योर्ड फॉर दैट। सप्तान साहब जिस दिन यहां पे हमारी मीटिंग हुई, जब वो आउटगोइंग स्पीकर के तौर पे गए, तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर की बात की है, तो मैंने कहा कि सर प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए किसी की अरेस्ट होना जरूरी है, बिफोर दैट हम नहीं कर सकेंगे। सो रेस्ट एश्योर वॉट एवर फैसिलिटेशन आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बन गई है, उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को लूप में रख के उन मेंबर्स को, जो हाउस के मेंबर्स हैं, दे आर वेरी डेयर टू मी, चाहे वो अपोजिशन बेंचेस से चाहे इधर से, आई विल इंश्योर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी कि मैं उनके हाउस के अंदर प्रेजेंस इंश्योर करूं। रेस्ट एश्योर। हम प्लीज सर एक सेकेंड, लेट अस बी विद मैं सेक्रेटरी असेंबली से कहूंगा सर प्लीज मुझे कार्रवाई बुकरेक्ट साहब प्लीज इजाजत दें थोड़ी, मैं आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी। आप तशरीफ रखेंगे, मैं आपसे बात करता हूं अभी। सेक्रेटरी असेंबली से कहूंगा पैनल ऑफ चेयरपर्सन का ऐलान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवायद-ए-ज़बात कार सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के कायदा 13 के तहत जनाब स्पीकर ने असम्बली के मौजूदा इजलास के लिए मंदरजा झैल तरतीब से 4 मुअज़्ज़ज़ अरकान पर मुश्तमिल पैनल ऑफ चेयरपर्सन नामजद फरमाया है। नंबर 1 राना मुनव्वर हुसैन MPA PP 78, नंबर 2 सैयद अली हैदर गिलानी MPA PP 213, नंबर 3 जनाब गुलाम रजा MPA PP 192, नंबर 4 मोहतरमा राहीला नईम MPA W304। शुक्रिया। मैं आज के इजलास के एजेंडे पे पहला आइटम उन अरकान का हल्फ है जिन्होंने अभी तक हल्फ नहीं उठाया। लिहाजा अगर कोई ऐसे मुंतखब अरकान ऐवान में मौजूद हैं तो हल्फ उठाने के लिए अपनी नशिस्तों के सामने खड़े हो जाएं और बाद में हल्फ के रजिस्टर पर अपने दस्तखत सब फरमा दें। इज देयर एनी जी? मैं अब कार्रवाई का आगाज करते हुए आज के एजेंडे पर आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 125 और रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असेंबली पंजाब के 146 रूल के तहत तहरीक पेश की जाएगी। मुहर्रिक अपनी तहरीक पेश करें प्लीज। ये सबसे पहले तो बात यह है कि आप इस सेशन को जो बुलाया है, इसको मैं इलीगल तो नहीं कहता, मगर इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपने जिस जल्दी से बुलाया, अभी लोग रास्ते में तो आ गए थे। एंड सेकेंडली आई थिंक द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, और ये हमें यहां आकर मिला है। इसमें आपने ये रूल्स तो पढ़े हैं, आपने रूल 147 भी पढ़ा होगा ऑफ द प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू आर्टिकल 125 भी पढ़ा होगा, मगर जब मैंने ये देखा है कि 358 अरब 57 करोड़ 17 लाख 81,000 रुपए आपको ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए एक माह के लिए चाहिए। क्या आपने इन फाजिल मेंबरान को इसकी क्लासिफिकेशन, डिवीजन या बाइफरकेशन की है? ये किस किस महकमे में जाने हैं? क्या हमें पता है कि इसमें कौन से पैसे हैं जो उन्होंने बना के दे दिया है? तो प्रेजेंट गवर्नमेंट में नॉट बी अश्योर्ड ऑफ, उनको पता भी नहीं होगा कि ये लिख के भेज दिया है, क्योंकि इस हमेशा पंजाब की या पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि हमने ये बाबू जो हैं एक इम्तिहान MSc करके आके वो बन जाते हैं एंड दे बिकम द मास्टर ऑफ द रिंग। इसमें यह है कि ये बहुत बड़ी रकम भी है, और इसमें आपने इसको मोशन करने के बाद इसको कोशिश करनी है कि आज हम इसको पास भी कर दें, मगर अगर आप देखें तो रूल इसका जो 94 है
पेज 94 पे, the procedure for dealing with supplementary estimates of expenditure and excess demand shall far as possible be the same as prescribed by the budget. And on a demand for a supplementary grant, funds to meet the proposed expenditure on a new purpose are available by reappropriation. A demand for the grant of a token sum may be submitted to the vote of the assembly if assembly assents. Second part जो बड़ा important है, not more than 2 days shall be allotted for general discussion of the supplementary budget. मेरी गुजारिश ये है कि आपने अगर ये किया है, ना तो इसकी हमें कोई इसकी बाइफर्केशन भी नहीं है कि किस किस महकमे को जा रहा है. मेरा ख्याल है जितने इस वक्त पंजाब में आपके महकमे हैं, इनको तनख्वाह की जरूरत नहीं है. आप देखें जितने पैसे आपने असेंबली के बाहर हमें घेरने के लिए रखे हुए पुलिस लगाई हुई है, जो हमारी जामा तलाशी आपने करवाई है. जनाब स्पीकर, यहां पर मुनासिब नहीं है मैं अपना रोना रोऊं. जिस दिन मैं एमपीए बना उसके बाद मेरे घर में 2 दफा रॉबरी हो चुकी है लाहौर में. आई कांट लिव इन माई दैट हाउस. एक थाने में 1500 एक महीने में केसेस हो चुके हैं, अनरिपोर्टेड अलहदा है. लेट मी बी दिस इज पंजाब असेंबली, दिस इज नॉट ए पर्सनल लाइफ. ये हमारी आपकी जाती असेंबली नहीं है. मेरी एक सेकेंड आप तशरीफ रखें. खफा इमरान नजीर साहब, और मैं एक सेकेंड जरा आप एक सेकेंड ठहरें. मुझे एक सेकेंड, मैं बिलाल साहब आप तशरीफ रखेंगे प्लीज. आप तशरीफ रखेंगे प्लीज, तशरीफ रखेंगे जरा. देखिए मैं एक सेकेंड, जब मैं उनसे ये कह रहा हूं तो मैं आपसे भी ये कह रहा हूं. ये बजटरी प्रोसेस है और बजटरी प्रोसेस पे जो मोशन मूव्ड है उस पर अगर प्रोसीजर पे किसी को एतराज है तो अभी तक जो वो बात कर रहे हैं उनकी बात ज्यादातर रूल्स और बजट प्रोसेस पे थी. और जो दो जुमले उन्होंने कहे आप उनको देखें. मेरी बात सुनिए, ये मेरी बात सुन लें. आप मेरी बात सुन तो लें. ये एक सेकंड, ये जी मैं तैयाब संधू, मिस्टर तैयाब संधू सर प्लीज. आप वोटिंग करना चाहते हैं तो आई विल गिव यू द फ्लोर, कीप ऑन डूइंग इट. मैं आपके जो आप मुझे गुजारिश, सत्यान साहब आप किनकी मतलब सत्यान साहब आप तशरीफ रखेंगे प्लीज. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स, मैंने फ्लोर उनको दिया, आप तशरीफ रखेंगे प्लीज. आप बैठेंगे प्लीज, फ्लोर उनके पास है. सत्यान साहब आप तशरीफ रखेंगे सर, आप प्लीज. थैंक यू वेरी मच. एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द मेंबर्स कि जिनके पास फ्लोर है वो बात करेंगे. राणा साहब आप अपनी बात, क्योंकि मैं अब ये चाहता हूं कि आपने जो अपनी बात करनी है सर, लेट द मूवर मूव फर्स्ट, उसके बाद आपका काफी मटेरियल है जो आपने बोलना है. यू हैव टू स्पीक. जनाब स्पीकर, मैंने यही कहा है कि जब मूव होने के बाद आपने फौरन इसको ना, आई विल नॉट. सर मेरी गुजारिश सुन लें, मैं ये नहीं कहता आई वुड नेवर गो. आज तक अल्लाह का फजल है, मैं काफी दफा देखा मेरा एक लफ्ज भी आज तक एक्सपांज नहीं हुआ. ठीक. मैं रूल्स में करना, आप भी मेरे साथ रहे हैं. मेरी गुजारिश ये है कि इस सूबे का पैसा आप जिन महकमों को देना, तनख्वाहें देने चाहते हैं, हमें पता तो हो ये किस किस को दे रहे हैं. लेट द मूवर एक्सप्लेन. लेट द मूवर एक्सप्लेन फर्स्ट. सर उनको अपनी बात कह लेने दें. ये तो मोशन हो जाएगा ना, आप इसको मूव कर देंगे. मैं वोट करने से पहले मूवर को कहूंगा कि एक्सप्लेन करें कि आपको इन पैसों की जरूरत क्यों है, किस लिए ये असेंबली पास करे. अगर उनकी वजूहात आपके लिए काबिल कबूल ना हो, आप उस पर एतराज करें. थैंक यू. I would request the mover please to move it जी. आप तशरीफ रखें प्लीज. नहीं सत्यान साहब नॉट अलाउड, आप बैठे. शुक्रिया स्पीकर साहब. स्पीकर साहब पहले मूव कर दूं फिर जी एक्सप्लेन. प्लीज आप मूव कर लें. थैंक यू जी.
I move that a sum not exceeding rupees 358,941,781,000 be granted to Governor of Punjab to meet expenditure other than that charged on the Provincial Consolidated Fund for a period of financial year 2023-24 under Article 125 of the Constitution and Rule 146 of Rules of Procedure of Provincial Assembly of Punjab, 1997, as votes on account in respect of all departments of government of the Punjab mentioned in the schedule authorized expenditure for the period of 1st March 2024 to 31st March 2024. Thank you, ma'am. The motion moved is that a sum not exceeding rupees 358,941,781,000 be granted to the Governor of the Punjab to meet expenditure other than that charged on the Provincial Consolidated Fund for a period of 1 month, 1st March 2024 to 31st March 2024, during the financial year 2023-24 under Article 125 of the Constitution and the Rule 146 of the Rules of the Procedure of Provincial Assembly of the Punjab, 1997, as votes on account in respect of all departments of government of the Punjab mentioned in the schedule of authorized expenditure for the period of 1st March 2024 to 31st March 24. Now, if any those who oppose it, ये क्योंकि मैं थोड़ी सी इजाजत मुझे देंगे राणा साहब, दिस इज द केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन. ये आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है, आप जो कहना चाहते हैं इस पर आइन और कानून के मुताबिक आप खुलकर अपनी इस पर बात करें. अगर आपको कोई एतराज है तो वो जो मूवर हैं शी विल रिप्लाई टू यू. पहला तो मेरा यही एतराज है कि इसमें लिखा हुआ है, बड़ा क्लियर है कि ये बजट पेश कौन कर सकता है. समथिंग इसमें यह है कि द बजट शैल बी प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर और इन हिज एब्सेंस बाय ए मिनिस्टर एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ. अब आप देखें कि दिस इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द बजट. इसमें आप अगर ये मुहतरमा जो मेंबर फाजल रुकन है, इज शी ए मिनिस्टर और इज शी ऑथोराइज टू प्रेजेंट दिस मोशन. पहला तो मेरा ये ऑब्जेक्शन है, इस पे आप इस पर रूलिंग दे दें, उसके बाद मैं करूं. सर थैंक यू वेरी मच. और मैं आपसे ये तवक्को कर रहा था और आई न्यू इट, मुझे कोई इल्हाम नहीं लेकिन मुझे ये यकीन था कि आप ये नुक्ता जरूर उठाएंगे. और ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा डिस्कोर्स है. और अगर ये असेंबली इस डिस्कोर्स से इन टेस्टिंग टाइम्स में इस तकरीर, दलील और बहस के साथ निकलेगी तो इसके साथ आपके अवान का तकद्दुस बहाल होगा, आपका भला होगा, इस 12 करोड़ के सूबे का भला होगा. नो व्हाट यू सेड इज राइट, दैट इज करेक्ट. एंड व्हाट आई रूल अपॉन आर्टिकल 125. आई वुड सजेस्ट कि राणा साहब तक एक किताब पहुंचा दें, आर्टिकल 125 दे दें. यस सर, इट सेज नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड in foregoing provisions relating to financial matters, the Provincial Assembly shall have power to make any grant in advance in respect. ये बात हम कर रहे हैं in advance. ये बात हम कर रहे हैं notwithstanding anything contained in those articles. Those articles are Article 119 to 124, which lays the common financial procedure. हम उनको dispense with कर रहे हैं और pend कर रहे हैं for a certain period. जब रेगुलर बजट पेश होगा उस बजट के मौके पर इसकी तफसीलात को उसके साथ रखकर आपके सामने लाया जाएगा कि ये असेंबली ने ये अखराजात मंजूर किए थे इन एडवांस. इसको डील करने के लिए फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 125 को यहां पर डाला और दैट सेज टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीडिंग 3 months pending completion, I emphasize again, pending completion of the procedure prescribed in Article 122 for the voting of such grant and the authentication of the schedule of expenditure in accordance with the provision of Article 123 in relation to the expenditure. अब सर ये मेरी आपसे आपने रूलिंग मुझसे मांगी है. ये
आर्टिकल 125 पढ़ा है, ये भी बड़ा दिस इज अ वेरी गिमिक होती है कि 3 मंथ्स के लिए जाते हैं तो थिंग्स वुड हैव डिफरेंट. मेरा तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इज द ऑनरेबल मेंबर ऑथराइज्ड एज ए मिनिस्टर? Is she a finance minister or has she taken an oath under the minister? The rule is very, if the Honorable Chief Minister would have, I would have not objected to that. But the issue is, under, can a member read out a motion of the budget and relating to the present circumstances? तो ये कर सकते हैं कि ये member इसको ये motion move कर दे. This has to be presented, moved by a minister. That exactly is the case in Article 125. 125 says that sir, Article 125 never authorizes any other member to present this. मेरी तो presentation में बात हो रही है, मेरी तो बात कोई नहीं हो रही है. मैं आपसे यही कह रहा हूं, ये जो 125 है, ये उस इवेंचुअलिटी में है जब गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है ना कि चीफ मिनिस्टर इज नॉट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज द कैबिनेट. सो वंस द गवर्नमेंट इज नॉट देयर, तो ये इख्तियार आपकी असेंबली का है. आप अपनी असेंबली का इख्तियार गवर्नमेंट के लैप में क्यों फेंकना चाह रहे हैं? अब टूर है जनाब, अगर आप असेंबली का ये सर, दिस इज नॉट ए बजट ऑफ द असेंबली, दिस इज अ बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. नहीं, मैं हु इज द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब? मैं आपसे ये कह रहा हूं ना, 125 में मैं आपको, राणा साहब, इस पे अलाउ मी टू ऐड मरियम इनटू इट. वो मूवर हैं, she has to say something. We will conclude it. Logically we will conclude it. थैंक यू स्पीकर साहब. स्पीकर साहब, एक तो बात करने से पहले और फाजिल मेंबर का जो कंसर्न है उसको एड्रेस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, और ये बात मैं बिल्कुल तंजिया नहीं कर रही, हर मेंबर के डेस्क के आगे रूल्स ऑफ बिजनेस और कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जरूर आप सेक्रेटेरिएट की तरफ से रखवा दें. तो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो हम खुद पढ़ के, मेंबर्स भी पढ़ के, उससे हम गाइडेंस ले सकते हैं. दूसरी बात, आपके प्लीज इंश्योर करेंगे, जो मैडम कह रही हैं इंश्योर करेंगे. आर्टिकल, जैसे मेंबर ने कहा और पढ़ के भी सुनाया कि आर्टिकल 119 और आर्टिकल 126 के दरमियान जितने आर्टिकल्स हैं वो फाइनेंशियल मैटर्स और बजट के ऊपर जितने भी रूलिंग्स होती हैं, लेजिस्लेशन होती है, वो आर्टिकल उसके अंदर इन्वोक होते हैं और उसके मुताबिक ये काम होता है. लेकिन आर्टिकल 125 जिसके तहत इस असेंबली का इख्तियार है और स्पीकर ने रूलिंग दी है जिसमें उन्होंने मरियम औरंगजेब एज मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली को ऑथराइज किया है टू मूव आर्टिकल 125 इन द इवेंचुअलिटी. एक मिनट प्लीज, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर, लेट अस कंप्लीट, प्लीज ऑर्डर. अगर ये आर्टिकल 119 और 126 के तहत हो रहा होता तो मिनिस्टर फाइनेंस, जिस तरह फाजिल मेंबर ने कहा, लेकिन ये ऐसी इवेंचुअलिटी में हो रहा है जहां गवर्नमेंट और गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर नहीं होता जी. गवर्नमेंट जो होता है वो कैबिनेट होती है, और जब उस इवेंचुअलिटी में कैबिनेट और गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती और प्रोविंशियल असेंबली होती है, तो ये चेयर का इख्तियार है, स्पीकर का इख्तियार है. इन्वोक आपकी रूलिंग के तहत ये आर्टिकल 125 हो रहा है, जिसके तहत मैंने इसको मूव किया. जी, थैंक यू. मैं राणा साहब, बिफोर यू गो, मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद फर्दर आपका आर्गूमेंट जो है वो रिलेटेड टू डिफरेंट डिबेट है. आपने रूलिंग मांगी है पहले इस नुक्ते पे कि क्या कोई मेंबर मूव कर सकता है. सो आई एज स्पीकर रूल, एंड आई विल रूल एंड सब्सटेंशिएट विद द प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द आर्टिकल्स actual reading of the constitution, and I rule subject pertaining to the financial matters, budget, etc. of the provincial assembly have been supplied to the constitution starting from article 119 to article 126 of the constitution. Articles 119 to 124 are applicable when provincial assembly and provincial government cabinet is available and had time to prepare its budget for laying and approval thereof from the house. I rule, whereas article 125 has specifically been incorporated in the constitution for catering the eventualities, the one which is prevailing, i.e. the provincial assembly is available, however neither the government nor the cabinet has been formed, nor it had the time to prepare, lay and get the budgetary approvals of the house. On the other hand, article 126 of the constitution deals with the situation where provincial assembly does not exist for having been dissolved, or as the case may be. This provision, Article 126, was invoked 4 months ago when the provincial government caretaker cabinet sanctioned the expenditure of 4 months while relying upon Article 126
by seeking guidance from an authoritative judgment of the Supreme Court of Pakistan, Haji Saifullah's case, PLD 1989, Supreme Court 1996, which judgment catered for identical situation. Earlier in year 1888-89, the said authorized expenditure for 4 months will lapse on 29 February 2024. The detailed opinion rendered in the respect by the Office of the Advocate General Punjab will also be available for your kind perusal in this regard to all the members. The prevailing situation is that the newly elected Provincial Assembly convened its first session on February 24, whereas the Cabinet has not yet been formed. Hence, no provincial government exists, nor the budget could be prepared and presented due to the paucity of the time. Therefore, in order to avoid financial shutdown, therefore, Mian Sahib, please, Mian Sahib, allow me to complete it, sir. Therefore, in order to avoid financial shutdown and disruption of essential services in the province of Punjab, for example, provision of necessary health services, ensuring law and order, the administration of justice, provision of salaries to the civil servants and judges, unavoidable and uninterrupted payments of energy, fuel, electricity, etc., we have to resort to Article 125 of the Constitution, which caters for such eventualities. It cannot be contemplated that a provincial assembly which has sworn in only 2-3 days ago is expected to prepare, lay, debate and get the budget approved from the House before or by 29 February 24. It is for such like eventualities that the framers of the Constitution have incorporated Article 125 in the Constitution. It may be noted that Article 125 starts with non-obstant clause, notwithstanding anything contained in the foregoing provisions relating to the financial matters, unequivocally settling that the provisions contained in the Articles 119 onwards will not be applicable for invoking Article 125 of the Constitution, if circumstances so permit. In my ruling, one cannot contemplate any other possible situation than the one we are in with which Article 126 has to be resorted. Needless to add that this is provision of Constitution not only enables, rather empowers the Provincial Assembly to make any grant in advance respect of the expenditure for a part of any financial year up to maximum period of 3 months, pending procedure prescribed in Article 122 of the Constitution for voting of such grant and the authentication of schedule of expenditure in accordance with provision of Article 123 of the Constitution. However, it is preferred that instead of availing the maximum period of 3 months expenditure, as supplied in Article 126 of the Constitution, 1 month's estimated expenditure be approved by the House as proposed by the Finance Department and has been accorded with. So, in these circumstances and with this reading of the Constitution of Article 125, it will prevail as mandatory if a situation where government is not available and the previous past budget will expire on 29th of February, it is a must that this Assembly, by voting with the majority moved by a member, can vote upon and pass it. So I rule that the member can. के बाद इखलाकी तौर पर इस पे मैं नहीं कर सकता बिकॉज आई कैनॉट चैलेंज द कंडक्ट ऑफ द स्पीकर एंड हिज रूलिंग. अब ये हमारा है कि मगर देर इज ए वेरी स्पेशल इन सर्कमस्टांसेस आपने अगर किया है, अगर आप कैबिनेट नहीं बना सके तो दिस इज नॉट माई फॉल्ट. यू कुड हैव मेड एनी फाइनेंस मिनिस्टर, उसने पढ़ना ही था. मगर नाउ देर इज नो बार ऑन द डिस्कशन ऑफ दिस सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए जो किया है, ये फाजल मेंबरान बैठे हैं, इन ये बात करना चाहते हैं. मेरे लिए तो ये बड़े बायस फख्र है कि ये यंग बॉयज, दे आर बैरिस्टर्स, दे आर डॉक्टर्स, दे आर इंजीनियर्स, ये सारे आए हैं. तो आप इनको मौका दें ताकि सप्लीमेंट्री ग्रांट के जो पैसे मांग रहे हैं ये इस पे कोई आपकी रहनुमाई कर दें या कोई बात कर सकें. देखिए सर, मैं राणा साहब इसमें एक बात सर क्लियर कर दूं. ये एक्चुअली इट इज एन ऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर विच द मेंबर इज आस्किंग फॉर. वंस इट विल कम एंड इट विल कम. ये जो बजट आज प्रपोज हो रहा है, ये आप एडवांस में पैसे हुकूमत पंजाब को जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं, जिनमें आपके बिल्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी है, लाइवलीहुड ऑफ 12 करोड़ लोग हैं, पूरा स्टेट का स्ट्रक्चर है,
اس کے اخراجات اٹھانے کے لیے آپ ان کو یہ رقوم دے رہے ہیں. اس کے بعد حکومت پابند ہوگی کہ وہ رقوم جو انہوں نے آپ کی اجازت سے استعمال کی ہیں ان کو بجٹ کی صورت میں آپ کے سامنے لے کریں. اس پر ان ممبران کا حق ہوگا کہ ہم نے یہ ایڈوانس دیا تھا, اس ایڈوانس کے اوپر ہم یہ سوال اٹھانا چاہتے ہیں. وہ کٹ موشن کی صورت میں لا سکتے ہیں, وہ اس کے اوپر اپنی تحریک دے سکتے ہیں, وہ اس کے اوپر سارے فائنینشیل پروسیجرز جو 119 سے 124 تک ہیں وہ آپ کا رائٹ ہے, which enables you to ask any question related in the procedure according to those financial matters. تو وہ آپ کا حق ہوگا. اسپیکر, وہ بالکل آپ ٹھیک بجا فرما رہے ہیں. اگر آپ کسی بھی چیز کو ایڈوانس دیتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے. یہ ضرور بتائیں گی, یہ موور ضرور بتائیں گی. یہ میری گزارش مکمل ہونے دیں. ٹھیک, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں پتہ چلے, لیٹ سے فار دا پولیس یہ کس مقصد کتنے پیسے جا رہے ہیں, پھر ہیلتھ میں کون سے جا رہے ہیں, مے بی فار دی ایڈمنسٹریٹو فار دی بیٹرمنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ میں کہہ رہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اس طرح آپ نے کہہ دیا 358 ارب روپیہ دے دیے. یہ میں اسمبلی سیکریٹریٹ سے کہتا ہوں کہ اس کی جو کاپی ہے, جو اخراجات یہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں وہ ٹیبلز پہ لے کر دے, وہ آپ کے پاس آ جائے. وہ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں, مگر اس پہ جب آئے گی تو ہم اس کو پڑھیں گے بھی, اس کو دیکھیں گے, یہ تو بحث کریں گے. نہیں سر, دیکھیں اس کی جو بحث کا حصہ ہے میری آپ سے صرف اتنی, جو میں نے ابھی یہ رولنگ بھی دی ہے اس چیز کو سامنے رکھ کے دی ہے کہ یہ آپ ایڈوانس ایکسپینڈیچر دے رہے ہیں. سر ایڈوانس پہ بھی یو ہیو ٹو آسک سم تھنگ وائی اٹ از نیڈیڈ. یہ میں نے آپ سے کہا, مطلب یہ میں نے آپ سے کہا ریلیکس دی رولز, جب آپ رولز بھی ریلیکس کرتے ہیں یو ہیو ٹو گیو اے ویری ویلڈ ریزن کہ وی آر ریلیکسنگ دی رولز. اگر آپ کو ایڈوانس چاہیے وائی. یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ میرے سامنے پڑی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ چیزیں مانگی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں, جو میں نے اپنی رولنگ میں لکھ کے دی ہیں وہ میں نے ان کی اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹ سے لی ہیں. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے بزنس, سیلریز, تنخواہیں, اس میں جو بیر نیسسری الیکٹریسٹی کے بلز یہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گی ساری. جو چارج ایکسپینڈیچر ہے نہیں جا سکیں گے, ججز کی سیلریز نہیں جا سکیں گی. اٹ ول کم ٹو اے کمپلیٹ ہالٹ. دا سسٹم ول کم ٹو اسٹینڈ اسٹل. ججز کا نام لے کے آپ کہتے ہیں کہ میں بات کروں تو ادھر جا کے میرے خلاف آپ کنٹمپٹ لگواتے ہیں. یہ نہیں ہے, مگر مجھے صرف یہ ہے کہ آپ. جی مریم اورنگزیب صاحب آپ بتائیں. جی تھینک یو اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب, ایک تو بڑا کیٹیگوریکلی آپ نے اپنی رولنگ کے اندر جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز پڑھی ہے اس کے اندر تفصیل سے آپ نے بتایا, لیکن فاضل ممبر کی سیٹسفیکشن کے لیے میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ یہ جو اسکیجول کے انڈر تمام ایکسپینڈیچر ان 3 منتھس کے لیے لے کیا گیا وہ تمام ممبرس کو کاپی دے دیں, تو ایک اس میں کیونکہ کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو فار 1 منتھ جو چھپ کے ہو رہا ہے یا کسی قسم کی اس کے اندر کوئی بھی ٹرانسپیرنسی ایشو ہے. آئی تھنک اف یو کین لے دیٹ فار 1 منتھ بجٹ جو ہے ان کو کاپیز دے دیں, اور ہم باقی ممبرز بھی شاید دیکھنا چاہیں تو سیکریٹریٹ پرووائڈ کر سکتی ہے. لیکن اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہوئے جہاں آپ آرٹیکل 125 کو انووک کر کے رولنگ دے رہے ہیں اس کے اندر یہ ایونچویلٹی جس میں تفصیل مانگی ہے کہ کون کون سے ایریاز میں یہ ہم دے رہے ہیں, تو اس کے اندر سب سے پہلے تو ہیلتھ سروسز ہیں. تمام ہسپتالوں کی جو دوائیاں ہیں جو کہ رننگ ایک ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اس کو لیگل کور دینے کے لیے 1 مہینے کے لیے یہ ایکسپینڈیچر کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اندر جتنے معاملات آتے ہیں اس کے اندر پولیس اسٹیشنز ہیں, ڈفرینٹ تفصیل ہے, اور وہ جب اب یہ دیکھیں گے تو اس کی مد میں بھی اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوا ہے. پھر سیلریز جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کی سیلری جو ہے اس کو لیگل کور دینے کے لیے اگر اسمبلی سے یہ آرٹیکل انووک کیا جا رہا ہے. اسی طرح ایجوکیشنل جتنی ایکٹیویٹیز ہیں, جتنے اسکولز ہیں ان کے اندر جو اساتذہ ہیں اور جو بچوں کا رننگ ایکسپینڈیچر ہے اس کو کور کرنے کے لیے یہ پروویژن کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد جو ججز کی بات کی کہ جو ایڈمنسٹر کرتے ہیں جسٹس کو, اس کے لیے یہ پورا جو کورٹس ہیں ان کے معاملات کے لیے تاکہ اس میں ڈیلے نہ آئے, اور جو آن گوئنگ ہے اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی گورنمنٹ کے انرجی کے اور ان سب چیزوں کی تفصیلات ہیں, تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آن گوئنگ چیزیں ہیں, اور اس کے علاوہ جو ایڈیشنل ضروری چیزیں ہیں ان کو اس کے اندر بجٹ کیا گیا ہے. تھینک یو میم, تھینک یو رانا صاحب. میں سر ایک بات کہہ دوں, میں سر ایک بات کہہ دوں جی. میں مجھے کوئی صاحب 1 سیکنڈ. جو آخری فکرہ ہے آن دی آن گوئنگ پروجیکٹس, یہ بڑا اٹس ویری میننگ یہ میں عرض کرتا ہوں جی,
मैं ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि ये जो निगरान हुकूमत में एक 100 रुपए वाला काम 5-5 हजार में हुआ है, उस पे करके ये बड़ा एक बहुत बड़ी कीमत क्या है? ये राणा साहब मैं लेट मी एश्योर द हाउस, क्योंकि ये इट इज कुरैशी साहब, प्लीज सर अलाउ मी टू, कुरैशी साहब मैं आपको दूंगा फ्लोर ना, आई विल, मुझे थोड़ा प्रोसीजर आगे चलाने दें किबला, मुझे प्रोसीजर तो चलाने दें, आप तशरीफ तो रखें, मैं दूंगा, आई विल। मैं जब आपसे कह रहा हूं आप इसी मुल्क के शहरियर और मुझे उनकी बात के प्रोसीजर तो चलाने दें, एक मिनट तशरीफ तो रखें, आई विल, आई सेड दैट आई विल, आप तशरीफ तो रखें, मुझे प्रोसीजर को तो आगे लेके जाने दें, उसके बाद आपने जो हुक्म फरमाना होगा फरमाएं। मेरी गुजारिश ये है कि आफ्टर द होल कंप्लीट डिस्कशन एज द मुझसे रूलिंग भी पूछी गई ऑनरेबल मेंबर की तरफ से, और उसमें यह बात क्लियर होगी कि मेंबर मूव कर सकते हैं, यह बात क्लियर होगी कि ऑन गोइंग ये जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं इसके लिए आप एडवांस दे रहे हैं, और यह बात भी क्लियर हो गई कि ये सब्सिक्वेंटली जब भी बजट ले होगा, जो कि ऑब्वियसली 31 मार्च से कबल होगा, इस महीने के आखिर के अंदर गवर्नमेंट को बजट लेकर आना पड़ेगा। ये जो एडवांस एक्सपेंडिचर आज आप इजाजत दे रहे हैं, इसकी पूरी तफसीलात आपके पास आएंगी, और इसके ऊपर जैसे हम सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के मौके पर भी करते हैं, बजट्स पर भी करते हैं, उसकी आपके पास पूरी प्रोविजन होगी टू कैरी ऑन। नाउ एज ऑलरेडी रेड, आई रीड इट अगेन। मैं ये जो मोशन मूव किया था, आई पुट द क्वेश्चन बिफोर द हाउस। द मोशन मूव्ड इज दैट सम नॉट exceeding rupees 358 billion 941 million and 781,000 be granted to the governor of Punjab to meet expenditure other than other than that one charged on the provincial consolidated fund. यार आप क्या कर रहे हैं कुरैशी साहब? दिस इज द वे, आप मुझे काम तो करने देना किबला। आप चले फरमाए क्या कहना चाहते, अब आप करें क्या कहना चाहते हैं? एक सेकंड, आप मुझे मोशन मूव करने से पहले रोक रहे हैं, और मैं तो अभी वोट करा ही नहीं रहा भाई। आप बोले, चले बोले, एक सेकंड, आप बोले। एजाज साहब ने जो कहना चाहा कहा, आप मुझे मेरा बिजनेस चलाने से हिंडर कि मुझे मैंने विद इन दिस पेपर बात कर रही है, अगर मैं इस पेपर से बाहर जाऊंगा तो आप मेरी बात ना सुनिए। आप करें। जनाब स्पीकर, सबसे पहले गुजारिश ये है, आपकी अंडरशियर ये पहला बाकायदा सेशन है। 11 बजे का टाइम था, 2:30 बजे आप तशरीफ लाए। मैं इस पर अफसोस का इजहार करता हूं कि 12.5 करोड़ की सूबाई असेंबली का पहला सेशन, अगर से बड़ा अच्छा जेस्चर दिया मैडम मरियम नवाज साहब ने कि वो तशरीफ लाई, लेकिन आप सुने ना खान साहब, ये छोड़ दें इस बात को। खान साहब ये बड़ा आपका ये देखे ना, मैं जनाब स्पीकर आपसे गुजारिश करूंगा, आप पंजाब के लोगों का साढ़े 300 खरब रुपए का बजट पास करवा रहे हैं सिर्फ एक पेपर पर। आप खुद तैयारी के साथ तशरीफ लाए हैं। आप हमारी कुरैशी साहब, आप देखें ना, आप इशारे करके उठा रहे हैं कि शोर शराबा करें। आप ये करना चाह रहे हैं?
ये सारी बात ये मैंने आपको रूलिंग में दे दी, आपने सुनी नहीं है। अच्छा देखें, ख्वाजा इमरान नजीर साहब, आप प्लीज मुझे सिर्फ अब मैं प्लीज भाई साहब आपकी बात होगी। खाई साहब, खाई साहब मुझे चलाने दें। खाई साहब आप तशरीफ रखें। खाई साहब आप ख्वाजा इमरान नजीर साहब आप तशरीफ रखें। कुरैश साहब आप प्लीज। खाई साहब आप यार आप क्या, और खाई साहब मैं आपको भी कह, खाई साहब और कुरैशी साहब मेरी बात तो सुने आप भाई। आप मुझे कुरैशी साहब आप एक सेकंड तशरीफ तो रखें। आप एक सेकंड बैठे तो सही। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। यार इजाज, अब आपने बात सारी कर तो ली है। एक सेकंड, मैंने एक सेकंड, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। खान साहब ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। खान साहब ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। एक सेकंड जी। Now the motion moved is that a sum of not exceeding rupees 358,941,781,000 be granted to the governor of the Punjab to meet expenditure other than that charged on the provincial consolidated fund for a period of 1 month during financial year 2223 under Article 125 of the Constitution and Rule 146 of the Procedure of the Provincial Assembly of the Punjab 1997 as votes on account in respect of all departments, the Government of Punjab mentioned in Schedule of Authorized Expenditure for the period of 1st March 2024 to 31 March 2024. Those in favor say aye. Those against say no. Ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Schedule for authorized expenditure for the period from 1st March 2024 to 31 March 2024 has been laid, and after the conclusion of this, आज के इजलास की कार्रवाई मुकम्मल हुई। लिहाजा इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जाता है। आगे ना हो यार, असल काम तो शुरू है। बाबा देखी भाई आपकी जिम्मेदारी है माइक की। मैं अपनी जिम्मेदारी पे माइक सबके माइक पे आते यार, ये क्या बात है भाई, आपकी जिम्मेदारी यार, सारे उठा रहे हैं अपने माइक छोड़ दिया इधर किसी ने। हाँ जी भाई माइक चलो यार, सब रखने हैं। चलो 2-3 और चलो, मैं
ये दो पकड़ ले। क्या कर रहे हैं? आपने भी जाने किया ना। चलो जी लाई जाओ जी रखी जाओ जी। अरे भाई किधर है? अरे भाई किधर है भाई? अरे भाई ये अरे भाई आ गया, ऊपर आ गया। कपड़े पाने बहुत मुश्किल भाई। पकड़ ले भाई। ठीक है, बाईस आनी चाहिए। पावन लग गया? ऑडियो आ रही, देखिए जरा। हेलो 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 माइक चेक। हेलो टेस्टिंग 1 2 3। हेलो ऑडियो चेक माइक चेक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो टेस्टिंग 1 2 3। हेलो ऑडियो चेक माइक चेक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो ऑडियो चेक माइक चेक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो 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 हेलो। और गाड़ी यहाँ भेजने ताकि मैं आपके पास जल्दी करें। कैमरामैन कौन सा जाएगा? आ रही ऑडियो? भेजे। ओके। हाँ बस जल्दी उसको भेजो, उसको टहरा यहाँ में दे दे और चला जाए। हाँ टहरा पहुँचा दें यहाँ पे और उसके बाद निकल जाए। जल्दी करें, जल्दी जल्दी। हेलो माइक चेक। हेलो टेस्टिंग 1 2 3। हेलो ऑडियो चेक माइक चेक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो हेलो। आओ चलें बस। मुंह में डाल दें। ऐसे ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। बड़ा हो जाएगा। नहीं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आओ जी। क्या हाल है? ठीक हो? एक मिनट आओ जी, आओ एक मिनट आओ सर, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਨਾ। मैं थोड़े ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਵੇਟ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ओ यार मैंने छोड़ दे लाल, छोड़ दे बेटा लाल हो थोड़ी। ਅੱਛਾ यार नाल हो जाओ, ठीक है, हो जाओ बेटा। ठीक है, मैंने इधरोਂ देखो ना। नहीं बेटा इस सर उधर देखो। मैं ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਦੌਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਦੌਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਜਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਰਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਰੇ। ओए गुफ्तगू हिल जाती है। ਉਹ ਨਹੀਂ हिल जाती है ना। ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਬੜਾ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ जी जी राणा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा मशकूर हूं कि आप यहाँ पर सब हमारे इंतज़ार में थे और ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि जो वज़ीर आला साहिबा आज तक अपना मिनिस्टर फाइनेंस नहीं बना सकी। ये भी लम्हा फिक्रिया है क्योंकि ये चुराया हुआ मैंडेट जो है उसमें काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं और उनको अपने वज़रा और को खुश करने के लिए मेंबरान को करना पड़ रहा है। आज का जो बजट था सबसे उसमें अजीब सी बात यह थी कि कल लोग हमारे वापस चले गए, आज किसी को इत्तला नहीं थी, मगर हमने अपने सोर्सेज से चेक कर पता चला क्या, मगर आज हमारे 104 मेंबरान यहाँ पर पहुँच गए थे, मगर उसके बावजूद इजलास 11 बजे का था और हमें दो बजे तक ना हमें एजेंडा मिला ना कोई चीज़ मिली। उन्होंने 1 मार्च से लेकर
31 मार्च तक के लिए एक सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए एक मोशन मूव किया। कानून के मुताबिक जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर या ऑन हिज बिहाफ को मिनिस्टर कर सकता था, मगर उन्होंने मरियम औरंगजेब साहिबान का नाम मरियम औरंगजेब साहिबा ने पेश किया, जो कि ज़ाब्ता कार के खिलाफ था। स्पीकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 125 का हवाला दिया, नॉट विथ स्टैंडिंग, मगर मैं उनकी रूलिंग को तो नहीं कह सकता इस वक्त। मेरा ख्याल उन्होंने जो फैसला किया वो गैर आइनी था और गलत था, क्योंकि शी वॉज नॉट ऑथराइज। अगर ये खुद वज़ीर आला साहिबा कर देती तो उसमें कोई कबाहत नहीं थी। तो मेरे पॉइंट ऑफ ऑर्डर को उन्होंने अपने तरफ पहले ही प्रिपेयर किया हुआ था कि हमने एक गैर जमहूरी काम करना है। उनका जो रूलिंग थी मैंने सुनी, मगर मैंने कहा मेरा क्वेश्चन ये है कि 358 करोड़ रुपए 358 अरब रुपए 94 करोड़ 17 लाख 81 हज़ार रुपए आपने ये सप्लीमेंट्री ग्रांट दे रहे हैं इन एडवांस 1 माह की। फॉर व्हाट? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मैंने कहा कि जी आप इस होम डिपार्टमेंट को, पुलिस को पैसे दे रहे हैं, मेरे घर में 2 डकैती हो गई है, तो उनको एक वजीर साहब बड़े उछले कि ये मामला नहीं है। मैंने कहा अगर फाजर रुकन के घर ये हो सकता है तो आप इस पुलिस को तनख्वाह की जरूरत नहीं है। इन्होंने असेंबली के बाहर हमें घेरा हुआ है। इसके बाद उन्होंने इसको रूलिंग दी और हाउस में कोशिश की इसको पुट कर दें, उस पर हमने एहतजाज भी किया। मगर मुझे अफसोस है कि जिस तरीके से ये बुलडोज कर रहे हैं, ये नहायत जमहूरियत को दफन करने के लिए कर रहे हैं, और ये लड़खड़ाती हुई जमहूरियत ये है, मेरा ख्याल है ये दम तोड़ने वाली है। इंशाअल्लाह। मैंने वहाँ कहा था कि ये हुकूमत इनका बस की नहीं है। ये बाबू होते हैं जो MS हमारी असेंबली के अंदर मेरे साथ जो रुकन बैठे हैं, उनमें बैरिस्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बहुत क्वालिफाइड भी हैं। मगर मेरा क्वेश्चन था कि आप इतनी बड़ी ग्रांट कर रहे हैं तो इस पर हमारी बहस हो जाए, हम इस पर हिस्सा ले लें। मगर स्पीकर साहब का आमराना रवैया, पता नहीं उन्होंने रूल्स खुद ही बना लेने हैं, मगर उन्होंने गलत काम किया है, जिसके लिए मुझे नहीं मेरे पे दम क्या करना था। उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं कही ये तो आपके अमल से ज़ाहिर होगा, हमारे मेंबरान गिरफ्तार हैं, हमारे घरों पर अभी भी रेड होते हैं, हमारे अभी भी वही पोजीशन है। मगर क्योंकि शिकायत कमज़ोर आदमी करता, मैंने शिकायत तो नहीं की। मैंने कहा ये डिपेंड करेगा आपके रवैये से। उनका रवैया आपने देख लिया है कि उनमें से 220 कह रहे हैं, उनमें से कोई इस काबिल नहीं था जो एक जिसको स्पेशल सीट पे मोहतरमा को लाए हैं, उन्होंने उसको पढ़ा है। क्या इतना ही यहाँ फुकदान है मेंबरान का? ये इतने ही बेहिस हो गए हैं? ये बिल्कुल ही है, इनको नहीं चाहिए। आप इलेक्ट होके आए हैं, अपना हक मांगें जमहूरियत की खातर, अवाम की खातर, 12 करोड़ अवाम की खातर। मगर मैंने उनको भी कहा कि हम कोई गैर आइनी, गैर जमहूरी काम नहीं होने देंगे। तो उसके बाद वो चलेगी, हाँ बात वहीं पे वहीं खड़ी है, तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। साहब, आपको ये कहा गया था कि आपको बात करने का मौका दिया जाएगा, इस पर वोटिंग अभी नहीं करवाएंगे, और आपने जिन अरकान का कहा कि वो बात करना चाह रहे हैं। क्या बिजनेस एडवाइजरी में कुछ चीजें तय पाई थी कि बात करने का किस हद तक मौका मिलेगा, और अगर मौका नहीं दिया गया तो आइंदा ऐवान को आप इस तरह क्या चलने देंगे? नहीं, मेरी देखें कि हमने जो भी उनका इशू आया, हमने भरपूर अंदाज में उसकी की है। ये हमने नहीं कहा। ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है कि वो जिस तरह बुलडोज कर रहे हैं, क्योंकि ये रिमोट कंट्रोल से चीज़ें जब चलती हैं ना, तो रिमोट के सेल ख़त्म हो जाएं तो रिमोट चलता नहीं है। इनके बैटरी डाउन होने वाली हैं। अब आप देखें कि इतने मेंबर हैं, आप मतलब कि आपके पास अगर मेजॉरिटी है तो वाई यू स्केर्ड। अभी एक नया काम शुरू कर दिया है, बस्ते खुल रहे हैं, और हमारे जीते हुए मेंबरान जैसे एक फैसलाबाद के एक MNA के हल्के में कर रहे हैं, जैसे अब लोधरा का किया है, फिर उन्होंने खानेवाल में ये किया है। ये बड़ा ही लम्हा फिक्रिया है। इनको अपोजिशन को बर्दाश्त करना चाहिए। अगर इस तरह चाहा
تو پھر پنجابی کہتے کمپنی چلنی نہیں ہے گی. رانا صاحب دوسرا یہ ہے کہ پنجاب کی ہے وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہا ہے، اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن کمیشن کو 26 تاریخ کو یہ خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے انتخابی نشان پر کوئی الیکشن نہیں لڑا اور ان کو مخصوص نشستیں نہیں چاہیے. یہ غلط ہے، یہ جعلی ہے، یہ جعلی ہے. کوئی بھی نہیں، ہم نے خود سائن کر کے دیے ہیں. اس سائن کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم سارے پی ٹی آئی کے عمران خان کے قرضدار ہیں، ان کے نام پر ہم جیت کر آئے ہیں. ان کا حکم تھا کہ ہم نے کیونکہ ہمارا نشان چھینا گیا، ہمیں الیکشن نہیں لڑنا دیا آزاد. ہم سنی اتحاد کونسل کے اب رکن ہیں اور ہم نے ایفیڈیوٹ بھی دیے ہیں. ہمارا یہ ریزرو سیٹس ہمارا حق بنتا ہے، انشاءاللہ ہمیں ملیں گی اور ہم لے کے رہیں گے. عمل کے لیے تو آپ پہلے بھی ریڈی تھے، جو آج ہوا ہے آپ ذہنی طور پر تیار تھے کہ اسمبلی میں ایسا ہی ہوگا. اگر یہی رویہ رہتا ہے جیسے قریشی صاحب نے بھی آج پوائنٹ آؤٹ کیا اسپیکر صاحب کے رویے کے متعلق، تو پھر آگے لائحہ عمل کیا ہوگا؟ یہ لائحہ عمل آپ آج ہمیں بتائیں کہ ہم نے کون سا غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر جمہوری کام کیا ہے. انشاءاللہ ہم نے یہ بھی آپ کو کہا تھا کہ جس طرح اسپیکر صاحب رولنگ دیکھ کے بھاگے ہیں، ہمارے پاس ایک ہی حل ہے، وہ آپ کا کیمرے کی آنکھ ہے، آپ کی قلم ہے. اس پہ آپ بتائیں گے، آپ ہمیں جو چاہتے ہیں. اگر نہیں اندر معاملہ حل ہوگا تو میں انشاءاللہ ہم سڑکوں پہ بھی احتجاج کریں گے، باہر بھی. پنجاب اسمبلی کو چاروں طرف گھیرے میں لیا ہوتا صبح کے ٹائم، تو آپ کے ممبران کی جو ہے اسمبلی کے اندر جو انڈر ٹیکنگ تھی اسپیکر نے، میری تو خود جامع تلاشی لے کے ایس پی آنے دیتا ہے. میں کیا کہوں، انشاءاللہ ڈی آئی جی پتہ نہیں کیا، مجھے تو سانو تو سپاہی دا پتہ ہے، گٹوں پھڑ کے لے جاندہ. یہ نہیں بات. انشاءاللہ یہ عارضی چیز ہے. دن بدلتا ہے، موسم بدلتا ہے، اور دنیا کہتے ہیں بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. یہ سب کچھ انشاءاللہ بدلے گا اور اصل جمہوریت عمران خان لائے گا. اور اس ملک کو جس نے نظریہ دیا ہے، جس نے سوچ دی ہے، جس نے فکر دیا ہے، جیسے ہمارے جتنے لوگ کھڑے ہیں، ہمارے جیسوں کو اس اسمبلی میں پہنچا دیا ہے انشاءاللہ. آپ نے رویے پہ اعتراض کیا اسپیکر کا، آپ بتائیے گا کہ آپ کے دیکھیں میں جنہوں نے حلف لیا اور کتنے سر ہمارے جو ہے نا احمد رشید اور میرے محترم بھائی 5 لاہور سے ہیں جن کو نہیں آیا. اب جو نیا کام شروع کیا ہے نیشنل اسمبلی کا کہ ری کاؤنٹ میں اب گڑبڑ کرنی ہے، تو ری کاؤنٹ کرنی ہے تو ہمارے بھی کروا دیں. 220 کے ہمارے ہیں، ہمارے اتنے ممبر ہیں. اچھا میں گزارش کروں جی، آپ نے سب نے دیکھا کہ آج پنجاب اسمبلی میں جس طرح سے پنجاب کے 3.5 کھرب روپے میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. پاکستان تحریک انصاف کی تمام جو پارلیمانی لیڈرشپ تھی، انہوں نے کانسٹیٹیوشن اور آئین کے مطابق اپنا رول پلے کیا. یہ مطلب بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک کاغذ کا صفحہ سیشن کے ٹائم کے بعد 3 گھنٹے کے بعد ہمیں پرووائڈ کیا گیا، جس پہ 350 ارب روپے کا بجٹ پاس کروانے کی یہ جو کوشش کی ہے انہوں نے. میں اسے کہوں گا کہ یہ پنجاب کی عوام کے وسائل پر ایک ڈاکہ ہے. یہ پنجاب کے عوام کے وسائل پر آج مریم نواز صاحبہ کی صورت میں ان کی قیادت میں پہلا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور پنجاب کے لوگ اس بات سے باخبر ہیں. ہم نے بار بار ریکویسٹ کی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے، اگرچہ وہ اسپیکر ماشاءاللہ 9 فروری کو معرض وجود میں آئے تھے، 8 فروری کے انتخابات میں تو ان کو شکست ہو گئی تھی. ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ جناب آپ 350 ارب روپے کا بجٹ پاس کروا رہے ہیں، کیا یہ ایجنڈا ممبران کو 1 روز پہلے پرووائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا اور انہوں نے ووٹنگ بھی نہیں کروائی. اور سب سے اہم بات، جن سرکاری اداروں کو بالخصوص پولیس کو فنڈز دینے کے لیے انہوں نے یہ بجٹ منظور کروایا ہے، وہ پولیس تو ساری یہاں پنجاب اسمبلی کے باہر ہم لوگوں کی جامع تلاشی کے لیے ہے. مطلب حیران کن بات ہے کہ پنجاب کے منتخب اراکین اسمبلی کے ایوان میں گاڑی پر نہیں آ سکتے، وہ اسمبلی کی پریمیسز میں داخل نہیں ہو سکتے، اور سرکاری افسران وردیوں میں گیلریز میں موجود ہیں. یہ ان کی جمہوریت ہے، یہ ان کی آئین کی پابندی ہے، یہ ان کا پارلیمان پر بھروسہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کا دن پنجاب کے لوگوں کے لیے موجودہ حکومت کی طرف سے ڈاکے کا پہلا دن ہے کہ پہلا ڈاکہ 350 کھرب روپے کا لگایا گیا ہے، اور 350 ارب روپے کا لگایا گیا، اور پنجاب کے لوگ اس بات کو دیکھ رہے ہیں. میں گزارش کر دوں، ہم پاکستان تحریک انصاف کے منتخب اراکین ہر صورت ان کا مقابلہ کریں گے. ہم نہ ان کے کسی تکبر سے، نہ ان کی رعونت سے، نہ ان کی فرونت سے مروب ہوں گے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ پارلیمان کو مضبوط کیا جائے. پنجاب کے لوگوں کے حق کے لیے جتنی آواز اٹھے گی ہم وہ اٹھائیں گے. اور میں میڈیا کے دوستوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ اب ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. آپ نے 1 سال بڑی سختی برداشت کی ہے، اب ماشاءاللہ آپ کو بھی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں اور پنجاب کے لوگوں کو بھی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی. کہ آپ نے کہا جی یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور یہ
पुलिस आपकी तलाशी लेती है। ये माजी के अंदर गुजरात से लोगों को बुला के यहाँ पे लोगों को फैंटी लगाई गई, ये उसी का तसल्सुल तो नहीं है, वो आपकी भी रियासत है। कतन ऐसा नहीं है। आप देखें, चीजों को अगर मिस मैच करेंगे और चीजों को मिस कोट करेंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा। आप खुद मुझे बताएं, आप सारे मीडिया के लोग हैं, क्या आपकी जो गाड़ियां या जीएसएन के अंदर आ सकती हैं? हम सब लोग गाड़ियां चेरिंग क्रॉस पर खड़ी करके यहाँ पैदल आ रहे हैं और सारे सरकारी अफसरान मोबाइल लेकर गैलरीज में बैठे हुए हैं। देखें, मैं गुजारिश कर दूं, चले बाहर खड़ी है ना, देखिए आप, अच्छा मेरी सुन लेना, मेरी गुजारिश तो सुन लेना जी। आप इन चीजों को आपने जो किया है उसका भुगत रहे हैं। नहीं भुगत रहे सर। अच्छा, अगर एक बुरा काम माजी में हुआ है तो हमें कंटिन्यू करना है। आप हमारी जो हम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आप चाह रहे हैं कि हम भी इस बुराई में शरीक हों। आप चाहते हैं कि अरकान असेंबली की तलाशियां मुजरिमों की तरह लिए जाएं, जिस पुलिस ने लोगों के घरों की हिफाजत करनी है। अभी राणा अफ्ताब साहब ने कहा कि घर पे 2 बार डकैती हुई है, बजाय डकैत, चोर, रस्सागीर पकड़ने के पुलिस यहाँ अरकान असेंबली की तलाशियां ले रही है। बाजीवा मिनिस्टर साहब मैं जाके मुबारक होते असेंबली से दे आई होते। देखिए, मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब 4.5 साल अपोजिशन बेंचेस पे थे। मैं तो उन्हें आज फरमाया, अर्ज की है, मैंने कहा मैंने तो आपसे सीखा है। मतलब जितनी बार इन्होंने पिछले 4.5 साल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर का लफ्ज इस्तेमाल किया है सारी अपोजिशन ने उस वक्त की, अगर ये उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना लिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते, ये सीधे जन्नत में जाते। तो अब उनको चूंकि स्पीकर की निशिस्त पे है, ताकत है जी, फिरौनियत है, रऊनत है रवैये में। अब वो किसी की जो नीचे चेयर पे बैठे उनकी बात सुना तौहीन समझते हैं, लेकिन हम उन्हें एहसास दिलाते रहेंगे। हम मौज़िन हैं इस असेंबली के, हम अपनी अजान देते रहेंगे। वो सुने ना सुने, इंशाल्लाह अल्लाह भी सुनेगा और पंजाब की और पाकिस्तान की अवाम भी सुनेगी। ये बताइएगा कि इससे कबल यही पुलिस जो थी, आज जिसका आप कह रहे हैं कि इनको बजट पास नहीं होने दिया, ना दिया जाए, यही पुलिस ने ईमान के अंदर जो है जो मेंबरों को गिरफ्तार किया था, वो रवैया गलत था, ये आज वाला रवैया गलत? देखिए, हमने तो उस वक्त भी उसे कंडेम किया था। आप तसव्वुर करें कि इनको गिरफ्तार किया गया था। मैं उन गिरफ्तार होने वाले लोगों में शामिल था। हम 4 अरकान असेंबली से जिन पर इसी हाउस में पुरअमन एहतजाज पर FIRs करवाई गई थाना किला गुजर सिंह में। मैं तो नहीं समझता कि हमें जमहूरी रवैयों को, आज मरियम नवाज साहब तशरीफ लाई है, बड़ा अच्छा जेस्चर दिया उन्होंने, लेकिन जेस्चर प्रैक्टिकली होना चाहिए, बातों से नहीं होना चाहिए। बातें तो सब लोग बड़ी अच्छी करते हैं। आप 350 अरब रुपए का बजट पास करवा रहे हैं और अरकान असेंबली को 24 घंटे पहले एजेंडा भी देने पर तैयार नहीं है। आप 11 बजे इजलास शुरू कर टाइम दे रहे हैं, 2:30 बजे इजलास शुरू कर रहे हैं। आप समझते हैं हम लोग वोटों से नहीं आए? भाई वोटों से ही हम आए हैं। आप जाली मैंडेट लेकर आए हुए हैं। ये कली खुल जाएगी। ये पाप की हांडी हर सूरत बीच चौराहे में फूटनी है। दुनिया देख रही है, पाकिस्तान देख रहा है, पाकिस्तान की आवाम देख रही है। ये सब लोग 9 फरवरी की पैदावार है। ये तो 15 लोग हैं जीते हुए यहाँ, ये बाकी सब लोग 9 फरवरी की पैदावार है। और ये वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला, इनको अंदाजा होगा जो ये बीज बो रहे हैं इनको काटने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर मैं एक चीज ऐड करूंगा, मैं PP 85 इमरान खान साहब के हल्के से हूँ। पिछले 3 दिनों से हमारे तमाम के तमाम ट्यूबवेल जो वाटर सप्लाई के लिए यूज हो रहे थे, उनके कनेक्शन उन्होंने काट दिए हैं और हमें आई डोंट नो कि किस तरह की अजियत के सामने भेजा जा रहा है। तो आपको मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको हाईलाइट करें, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। कैसे पानी बंद किया जा रहा है, इवन वहां से जो ट्रांसफार्मर हैं वो भी उतार दिए गए हैं। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि हाईलाइट करें और कम से कम जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो इस मसले का हल निकालें। थैंक यू वेरी मच भाई। थैंक अब दूसरी पार्टी आनी है। सेशन में अंदर
हाँ इधर सारा कुछ चला दिया हाँ जी हीरा सर दसो फिर बैकअप है उनको बस फिर जो मैं घट देनी है तो फिर को मेरी भैन भी होर घट दे रही हैं उनको मेरी भैन इस तो भी ज़्यादा घट रही हैं 14 नहीं 13 में कोई गल मैं आना फिर शाम को हाँ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ एकदम को ले लो वो तो को ले लो दे देगा